Welcome to my reading, Aquarius. Hello, hi. I hope you're doing good, Aquarius. Okay, this is your love reading, which will depict your partner's messages, whether you're in a relationship, whether you're married, whether the person is on your mind, could be anything. Specifically, the messages from your partner, what he or she is thinking about you, what he or she is thinking about this bond, this relationship, उनके अपने सोच विचार क्या है इस बारे में in terms of actions, emotions, thoughts, feelings, intentions, everything. Now please keep this in mind, Aquarius. You can watch it. Okay, this is a general reading, collective reading. So please keep that in mind that certain things might resonate, certain things might not resonate, okay? Do not fit a different story into your own love story if it doesn't resonate with you. Okay. You can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. First, I'll be checking out the mutual energies. Okay, then the individual energies. Please show us the mutual energy card, universe, between Aquarius and their partner. What's the mutual energy between Aquarius and their partner? Mutual energy between Aquarius and their partner. Oh my goodness. Capricorn had that same mutual energy. Okay, now your individual energy, Aquarius. It seems you guys are manifesting something. You're trying to build something, together, which is good. अब हो सकता है दोनों का एनर्जी लेवल तो सेम एक जैसा नहीं होगा, 19-20 हो सकता है. Let's see. Individual energy आपका क्या आता है, Aquarius? What's your individual energy? Please show us the card for Aquarius individual energy. Okay. Energy of Aquarius's partner. What's the energy of Aquarius's partner? Please show us the card, universe. Energy of Aquarius's partner. ओहो, दोनों का ही एस का कार्ड है. बैकग्राउंड में मुझे लगता है बहुत ताक झाक हो रहा है. कोई तो यहाँ पे है आप दोनों में से जो बहुत ताक झाक कर रहे हैं, in the sense stalking, spying, things like that. Getting to know some more information. आपका प्यार लगता है अभी इधर बहुत न्यूली स्टार्ट हुआ. Aquarius, अब ऑब्वियसली सब Aquarius के साथ एक जैसा नहीं होगा. Aquarius, आपके म्यूचुअल एनर्जी की बात जैसे मैंने की है, it has got a magician card, which means you are manifesting or trying to manifest something, trying to make something out of this bond, और दोनों का ही एस का कार्ड आया है. आपका एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके पार्टनर का एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. आपकी बात अगर करें तो यू आर brimming with brand new ideas, filled with lot of fuel, passion, energy, and आपके पार्टनर की बात अगर करें तो उन्हें किसी बारे में मेंटल क्लैरिटी मिली है, जो अब तक उनके माइंड में एक मेंटल फॉग छाया हुआ शायद था, तो वो कंफ्यूजन, वो मेंटल फॉग अब हट गया है उनके दिमाग से. विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, योर पर्सन हैज गॉट द क्लैरिटी नाउ व्हिच he didn't have previously or she didn't have previously. And after gaining clarity, after having a new fresh idea, आपका न्यू फ्रेश आइडिया, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू पावर, न्यू सर्ज ऑफ एनर्जी, and your partner's mental
क्लैरिटी, ये दोनों ही चीजें मिला के आप दोनों कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ एस का कार्ड है। अ वेरी फ्रेश एनर्जी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपके माइंड में है, अब तक आप लोगों ने फीलिंग्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं एक दूसरे को, इसीलिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम में आया है। हो सकता है ऑनलाइन आप स्पाई कर रहे, स्टॉक कर रहे और बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, या फिर वो भी ऐसा कर सकते हैं आपके बारे में। देखते हैं आगे आगे, रीडिंग जितना आगे बढ़ेगा पता चलेगा उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अब मुझे क्लैरिटी मिलेगी उतना ज्यादा। ओके, चलो लेट्स फाइंड आउट। Please show us the card. अच्छा, these are all the messages from your partner's side. Okay. देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में ख्यालात हैं, दिलो दिमाग में ख्यालात क्या है, क्या बातें चल रही है, आपसे क्या कहना चाहते हैं। Show us the card, universe. Show us the messages. I know one day we will find our way back to each other. That means you guys were having a relationship before. कुछ ऐसी बात हुई है और फिर से एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे या फिर ख्वाहिश कर रहे, वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे। मैंने कहा ना फ्रेश एनर्जी है, दोनों की तरफ से ही येस है। So your partner is also thinking what you're thinking. Both of you are wanting to manifest this relationship, in the sense wanting to start this relationship anew, afresh. I know one day we will find our way back to each other. I wish I could feel your body close to mine. Ace of Wands का कार्ड आपके तरफ से है, Aquarius. So you must be, हो सकता है ये आपकी ख्वाहिश है, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आप। देखते हैं और क्या आता है कार्ड मैसेजेस के तौर पे। प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस यूनिवर्स, लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस फ्रॉम Aquarius partner side. What's the message? What's the message from Aquarius partner side? I'm keeping my distance to protect you and your energy. I'm trying to become the best version of myself for you. इसीलिए वो अपने आप को दूर रख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे traits उनके नेचर में थे। I'm saying थे because this person is trying to mend himself or mend herself, in terms of nature, behavior, स्वभाव, अपने अंदर बेसिकली एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे। अब तक हो सकता है वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में ड्वेल करते थे इसीलिए आपको दूर रखते थे जानबूझ के, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे, आप उनके नेगेटिव एनर्जी में शामिल ना हो जाए। आपके एनर्जी को वो प्रोटेक्ट करते थे, ऐसे आपको दूर रख के उनसे। इसीलिए यही सब वजह से गैप क्रिएट हुआ और अभी जो करंट स्टेटस है, दोनों ही एक दूसरे को फिर से पाना चाहते हैं, नजदीक आना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, Okay, let's see what more. What more, universe? Please let us know something more about this between Aquarius and their partner, especially from Aquarius's partner side. What more do you need to know regarding this? It only feels like a mistake. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आपसे दूर रख रहे ना आपको, इसीलिए आपको और ज्यादा स्टॉक कर रहे,
इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं आपके बारे में, वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं आपके बारे में, ऑनलाइन बेसिकली स्टॉक कर रहे, स्पाई कर रहे, क्योंकि नज़दीक तो आ नहीं पा रहे, तो इसीलिए दूर से ही आपको देख रहे हैं, दूर से ही आपका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया में। बोलिए, एक गार्डन की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वार्म गार्डन, इसीलिए आई एम कीपिंग माई डिस्टेंस टू प्रोटेक्ट यू एंड योर एनर्जी। बहुत ही अक्लमंद है, मैं कहूंगी आपका पार्टनर, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी बहुत होता है उन लोगों में, तो बहुत ही ज्यादा मेंटल क्लैरिटी वो अपने अंदर अभी एटलीस्ट फिलहाल रख रहे हैं, जो पहले नहीं था। पहले शायद उनके अंदर बहुत ही भर भर के नेगेटिव एनर्जी था। देखते हैं शैडो साइड में और क्या आता है। प्लीज शो अस द शैडो साइड, यूनिवर्स, द डार्क साइड ऑफ दिस बॉन्ड। What's the dark side of this bond between Aquarius and their partner? The shadow side of this relationship between Aquarius and their partner. Bad timing, too little, too late, taken, not ready to love again. I'll pick one more card. Drowning, you're going under and barely keeping things afloat. Ask for help. बैड टाइमिंग हुआ था, बैड टाइमिंग था, इसीलिए आप दोनों के बीच ये सब घटना घटी। लेकिन कोई बात नहीं, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जब आया है तो इसका मतलब एक नई शुरुआत तो होना ही है। और ऊपर से बीच में म्यूचुअल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है विद द मैजिशियन कार्ड, तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, क्योंकि आप दोनों ही वही ब्रांड न्यू एनर्जी, एक नए शुरुआत की एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। हालांकि आपका पार्टनर बहुत, अभी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अभी फिलहाल ये सब स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि उनके पास्ट में मैं कहूंगी I'll say that he or she was drowning with all those negative thoughts. Drowning और कुछ नहीं, drowning with the negative thoughts, It was a bad time, certainly bad moment. उसी मोमेंट पे एक बैड टाइमिंग होता है, जब झगड़ा होता है उस इंसान में, एक मोमेंट होता है, एक टाइमिंग होता है। So that's how I'll read this card. Okay. लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिविंग का कार्ड आया है। आप दोनों प्लीज फॉरगिव करें एक दूसरे को। मेरे ख्याल से दोनों ही वही चाहते हैं, वरना मैनिफेस्टेशन का कार्ड नहीं आता, मैजिशियन का कार्ड नहीं आता। दोनों ही अंदर एक दूसरे को फिर से पाना चाहते हैं, और साफ साफ ये इस कार्ड में आया है एकदम शुरू में। आई नो वन डे वी विल फाइंड आवर वे बैक टू ईच अदर इन दिस कार्ड। तो प्लीज अपने पार्टनर को हेल्प करें, एक्यूरियस। Don't let him or her drown or swim in the negative thoughts, in the pool of negative thoughts. He or she is trying hard, that's what I can say and that's what I can see. Your person is trying hard to get the clarity. क्या उनसे गलतियां हुई थी, खामियां हुई थी, जो अब वो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं गाइडेंस के तौर पे और क्या आता है। राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। सी, बैड टाइमिंग यहाँ पे हुआ था जब आप दोनों के बीच ये सब घटना घटी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली बैड टाइमिंग हो तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही होगा।
राइट टाइम होगा तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होगी, पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा. दैट इज व्हाट इज ऑब्वियस. सो डीप डाउन बॉटम ऑफ द डेक में यही कहा जा रहा है, राइट टाइमिंग. यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वेट फॉर द राइट टाइम, हैव फेथ and wait until you find the right one. Right one in the sense, hold on, self-love soon. That's what your partner need to do. I think उनमें सेल्फ लव की कमी है, इसीलिए जो सेल्फ लव करते हैं ना, सेल्फ लव की क्लैरिफिकेशन जिनमें है, वो दूसरों से भी सही तरीके से पेश आते हैं, सही तरह से प्यार करते हैं, प्यार करना जानते हैं. तो यही क्लैरिटी आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहा है अभी धीरे धीरे. It might take some time, so that's why universe is asking you to wait for the right time, right moment. Have faith, have patience. आप दोनों के अंदर यूनिवर्स और भी ये कहना चाहता है, जो टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस आप दोनों ने फील किया अब तक इस बैड टाइमिंग की वजह से, उससे प्लीज ब्रेक फ्री कीजिए अपने आप को. एक्यूरियस, उससे प्लीज उस टॉक्सिसिटी से ब्रेक फ्री कीजिए, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, तो वो टॉक्सिसिटी खुद ब खुद धीरे धीरे हट जाएगा. Enduring bond. Put your family first and spend time together. Be mindful. Universe is asking you to be mindful. Prioritize. Enduring bond. See, this is how beautifully universe is guiding you and asking you what to do and what not to do. Okay. So this was all about your reading, Aquarius. Hope you liked it and got some guidance. Please do the needful accordingly, whatever is needed in your case. Okay. So I wish you all the very best for your love life, Aquarius. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.